اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں، اور بے پناہ درود و سلامتی ہے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل ماتبین پر۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم و آلہ اصحابہ اجمعین۔ میری دینی بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پہ ہے۔ پہلا، شہادت لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرنا بشرطے کہ وہاں جانے کی طاقت ہو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، الحمدللہ مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الایمان۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کے جو بنیادی ارکانات ہیں، جو عبادات ہیں، ان میں 5 ہمارے لیے خصوصی عبادتیں ہیں، جس میں سب سے پہلا توحید ہے۔ بغیر توحید کے تو کسی عبادت کو قبولیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ اپنے ایمان والے بندوں کو دیے ہیں، اور جس کی شروعات توحید سے ہوتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ شہادتین ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے یعنی کہ دوسرا رکن نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ استطاعت ہونے والے مسلمان پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اس بات کی پوری رہنمائی فرما دی۔ استطاعت سے مراد کیا ہے؟ بندے کو بیت اللہ تک پہنچنے اور پھر واپس گھر تک آنے جانے کا خرچ اور کھانے پینے کی جو سہولتیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ پینے کی سہولتیں تو اتنے سارے اسباب، خالی وقت پورا کھانے میں چلے جا رہا، بلکہ وہ جو ضروریتیں ہیں، غذا اس کو چاہیے، وہ ضروریت روزمرہ کی جو صبح شام دوپہر جو بھی ہے، 2 ٹائم 3 ٹائم کھانے کا زیادہ رہا برابر اس کے ساتھ ہو۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب حد کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب حج کو نکلنے سے پہلے زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہی فإن خیر زاد التقویٰ، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تو اس سے مراد دونوں ہی چیزیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اسباب بھی ضروری ہے، اور کھانے پینے کی وہ ضرورت کی چیزیں، اور ساتھ ساتھ جانے اور آنے کا خرچ۔ اس طرح سے اگر کوئی بندے پر یا سواری کی یعنی کہ سب بندوبست ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں نماز کی فرضیت عمر کے ساتھ ہو جاتی ہے، اگر بندے نہیں پڑھ رہی تو حساب کی شروعات ہے، جواب دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں، اور 10 سال کے ہو کر نہ پڑھنے پر ان کو سزا دے، کہ وہ نماز نہیں پڑھے تو ان کو سزا کا حکم دیا گیا۔ میری بہن غور کر کے دیکھیں کہ احکامات کی فرضیت جب ہوتی ہے کسی بھی عبادات کے، جیسے کہ نماز کا حکم ہے، تو آپ اس پر غور کر کے دیکھیں، نماز کی اہمیت کا بھی اس سے ہمیں اندازہ ہوگا الحمدللہ، کہ دیگر بنیادی عبادتوں کے بنسبت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے، بچوں پر کتنے شفیق رہے، لیکن بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مار کی سزا دو اگر وہ نماز نہ پڑھے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا احساس کیجئے کہ ہم کو ابتدا سے ہی نماز کی تربیت دینا، نماز کے لیے بولنا کتنا ضروری، ورنہ ہم دیکھتے کہ کبھی کبھی ہم بچپن میں تھوڑی لاپرواہی جب کرتے ہیں، ایک عمر کے بعد ایسے لوگ صرف پچھتاتے رہتے کہ بچوں کو نمازی بنانے کے لیے، تو اسی طرح ان پر وہ عبادتیں فرض ہو جاتی ہیں۔ اور میری بہنوں، اس کے بعد دوسرا زکوٰۃ کا معاملہ دیکھیے۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت، اگر ایک بندے مسلمان کے پاس سونا ہے اتنا نصاب کو کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یا جمع پونجی ہے، یا کاروباری مال ہے، زمینیں جائیدادیں وغیرہ، اب کھا کے اس وقت اس کے ہاں پیسے نہیں بھی ہے
تو وہ یہ نہیں बोल सकते कि मैं नहीं दे सकता हूँ, वैसे वक्त उस सोने में से बेचकर उसको ज़कात देना है ना? कुछ भी करें, ज़मीन का एक टुकड़ा बेचो लेकिन ज़मीन की ज़कात अदा करो। आप लाज़िम है, जो चीज़ पर ज़कात की फ़र्ज़ियत हो जाए, तो आपको ज़कात देना ही देना है। इसी तरह फ़र्ज़ क्या होता है, वो हम अपने तरफ से फ़ैसला नहीं करेंगे, क्योंकि आम तौर पे लोग देखते हैं, कई जगह ये होता, नमाज़ की फ़र्ज़ियत हो चुकी 10 साल की उम्र से, लेकिन 30 साल के हो गए, आज तक भी नमाज़ें नहीं पढ़ रही। 60 साल के हो गए, नमाज़ें नहीं पढ़ रही। अरे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते बोल रहे हैं क्या? पढ़ेंगे। तो आप अपनी तरफ से अपने ऊपर से इबादत को लागू नहीं कर सकते, अल्लाह का हुक्म है, जो वक़्त आते वो इबादत हम पर फ़र्ज़ हो जाती है। अब अगर हम नहीं पढ़ रहे, लापरवाही कर रहे हैं, तो अल्लाह के गुनहगार, फिर उसका हिसाब है। इसका एहसास रखिए मेरी बहनों। इसीलिए ये तमाम इबादतें, नमाज ही नहीं बल्कि ऐसे ही नमाज की हुक्म है, ऐसे ही ज़कात, निसाब ज़कात का शख्स है, हाँ वो उन्हों कितनी ही दुनियादारियों में, यानी कि उन्होंने बोल रहे हैं नहीं ये साल मेरे को इतना खर्च हुआ, मैंने दवाखाने पे खर्च किया या मैंने बेटी की शादी की, तो वो सब आप जिम्मेदारियों को अलग रखिए, फर्ज हो गई ज़कात, अपनी ज़कात की अदायगी का एहतमाम कीजिए। इसी तरह से मेरी अजीज दीनी बहनों, हमारे लिए रमजान के रोजे भी है कि बिला किसी शरई उजर के रोजों का छोड़ने वाला अल्लाह ताला का गुनाहगार बंदा कहलाता है। तो ये जब के रमजान में दाखिल हो गए, सेहतमंद है, मुकीम है और अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखने की पूरी सहूलत है, बावजूद इसके आप रोजा नहीं रख रहे, तो गुनाहगार है। तो ये रमजान आते ही रोजे की फर्जियत आप पर आयद हो जाती है। तो ऐसे ही हज के मामले में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शर्त क्या है, बशर्ते के बंदे के यहाँ इस्तिताअत हो। आगे खुलासा में और आप जरूर सुनेंगे पूरे शराइत वगैरह, लेकिन जब किसी बंदे के यहाँ इस्तिताअत हो जाए कि वो हज को जाने आने का खर्च है उनके यहाँ, और जो बकिया शराइतें आगे हम सुनेंगे, अगर मर्द के लिए जो शराइत होती है, मर्द के लिए, मर्द के पास उतनी ताकत है कि वो शराइतें सब पूरी करते हुए वो हज को जा सकते हैं, और औरत पर जो शराइत आयद होती है, अगर उनके यहाँ उतनी ताकत है कि वो पूरी करते हुए हज को जा सके, तो उन पर हज फर्ज हो गया। अब अपनी तरफ से ये नहीं बोल सकते कि बच्चे छोटे हैं मैं नहीं जाऊंगी, या बेटियां शादी को है, अब बेटियों की शादी करना जरूरी है या हज करना हज, ये 4 बच्चियों की शादी करे तक हज के उतना सवाब हो गया भाई, 4 4 हज है मेरे, तो अल्लाह अकबर। ये लोग आज ऐसे तरीके बना लिए, बोलते कि जाती घर नहीं है, माँ कह का हज करेंगे, 5 4 तोले सोना नहीं है, कह का हज, कह का उम्रा, हालांकि उनके यहाँ इतने असबाब है कि वो हज को जा सकते। तो मेरी बहनों ये चीज बिल्कुल गलत है, और ऐसी इसी से इसी की हकीकत को तो समझने के लिए अब हम शुरुआत करेंगे। उन्वान हज, हज की अहमियत क्या है, हम पर हज जब फर्ज होता है और बावजूद इसके नहीं करेंगे, तो शरीयत की नजर में वो मुसलमान कैसे मुसलमान है, मर्द हो या औरत। इसी तरह से हज की फजीलतें और हज की फर्जियत जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए अल्लाह ने क्यों रखी है, आइए तो जाने माशाल्लाह। सबसे पहली बात तो हमने ये जान लिया कि हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकानात में से एक अहम रुकन है। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी घर वगैरह बनाने के लिए, कोई काम करने के लिए, जो बुनियादी मामलात होते हैं उसको पूरा करना जरूरी है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, इस्लाम के पिलर्स कहा गया, क्योंकि बगैर पिलर के कोई इमारत नहीं ठहरती। तो हमारी इस्लाम की इबारत इमारत के लिए भी ये पिलर जरूरी है। बस हज का फर्जियत भी जब हम पर इस्तिताअत आ जाए तो अदायगी हज के लिए तैयारी करें, अगर उतनी इस्तिताअत नहीं है तो उम्रे के लिए एहतमाम करें, जितनी हमें सकत दे, लेकिन अल्लाह ताला के घर तक जाने, अल्लाह ताला के घर की इबादत करने का शौक भी हमारे अंदर होना जरूरी है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं मेरी बहनों, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 97 सतियनों में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने उन लोगों पर जो इसके घर की तरफ राह पा सकते हो, इस घर का हज फर्ज कर दिया है। अल्लाह का जो लफ्ज है, अहले इल्म ने इसको बताया कि ये फर्जियत के लिए, लिहाजा जिस किसी के पास भी उस तक पहुंचने की सहूलत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उन पर इस घर के हज को अल्लाह ने फर्ज कर दिया है। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। क्या फरमाया, और जो कोई कुफ्र करेगा, इनकार करेगा इस बात से, यानी कि उनके पास है सब कुछ, लेकिन उनके दिल में हज की एहसास नहीं है, उम्रे का एहसास नहीं है, कोई शौक नहीं है। कुफ्र के माने क्या होते हैं मेरी बहनों, इनकार करना। कुफ्र एक वर्ड है जिसके माने होते हैं इनकार, काफिर, इनकार करने वाले। तो देखो,
कोई यानी कि अब ऐसे वक्त में हम अक्सर काफिर बोलते हैं, हमारी जहनियत जाती गैर मुस्लिमीन की तरफ। तो मेरी बहनों, इनमें भी कई सारे लोग होते, कोई बुत परस्त है गैर मुस्लिमीन में, तो कोई समझिए कवाकिब परस्त है, तो कोई आग की परस्तिश करते हैं। ये अलग 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 है, मुसलमान नहीं है, दीगर मजहब के लोग हैं ये अलग है। कुफ्र क्या है? ये एक लफ्ज ऐसा है जहां पर आप देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और वमन कफर फइन्नल्लाह, और जिस किसी ने इनकार किया अल्लाह ताला के इस हुक्म का, कुफ्र की इसके साथ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला तो इनसे क्या, गनीउन अनिल आलमीन, पूरे आलम से बेपरवाह है अल्लाह। अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं है कि हमारे आपके इबादत न करने से, हमारे आपके बैतुल्लाह की तरफ जाने की परवाह न करने से अल्लाह ताला को कोई फर्क पड़े, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह बेनियाज है, इनसे ही नहीं बल्कि दुनिया वालों जहान वालों से अल्लाह ताला बेनियाज है। तो मेरी बहनों, इससे एहसास कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या अहमियत हमारी जिंदगी में हज बैतुल्लाह की रखी है। और इसका माना इनकार करना, तो ये वर्ड जो है कलमा गो लोगों पर भी लगता है, जब अगर वो किसी इबादत का भी इनकार कर दे, या अगर कोई कलमा तो पढ़े, तौहीद को नहीं समझ रहे पूरा, तो फिर वो तौहीद का इनकार करने वाले कहेंगे, कुफ्र करने वाले, पूरी पूरी मुकम्मल तौहीद को नहीं समझने वाले। इसी तरह से कोई सुन्नतों का इनकार कर रहे हैं, तो सुन्नत के साथ कुफ्र करने वाले, तो ये भी होता है। तो इसीलिए कुफ्र क्या है? एक वर्ड है। अल्लाह इसलिए फरमाता है जिस किसी ने इनकार किया, तो लिहाजा वो जो है अल्लाह उनसे क्या, तमाम दुनिया जहां वालों से बेनियाज है। तो मेरी बहनों, इससे हमको एहसास करना है कि अल्लाह ताला ने किस तरह ताकीदी तौर पर, खूब वाज़ेह खुले तौर पर हमको इस बात का हुक्म दिया कि फर्जियत हज जो है हर मुसलमान पे जब फर्ज हो जाए तो उसको अदा करने के लिए एहतमाम करना कितना जरूरी है। इस जैसे कि मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तारीख हज हम देखते हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस यादगार को दोबारा ताज़ा करते हुए लोग बैतुल्लाह का हज करते हैं। लेकिन अगर हम तारीख इस्लाम के कुछ और पन्नों को पलटते हुए आगे तक चले जाएंगे मेरी बहनों, तो ये इबादत तो आदम अलैहिस्सलाम की तब से है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बहनों, फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो जो निशानियां बाकी तो रह चुकी थी, बुनियादें जो आदम अलैहिस्सलाम ने उठाई थी, लेकिन उसके बाद तूफान नूह के वक्त में जो तमाम चीजें खत्म हुई, तो ये तमाम चीजें भी ऊपरी, क्योंकि रेत का बना खाने काबा था, तो वो जो सब चीजें रह गई, बस उसके बुनियादी निशान बाकी रह गए। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले तो आपके अहले खाना के लिए हुक्म दिया कि आप ले जाएं और बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस रेगिस्तान में छोड़ दें जिसकी आबादी के बाद फिर वो एक बार वीरान है, और अब फिर अल्लाह ताला दोबारा आबाद करेंगे, अब क़यामत तक उसको आबाद रखना है। तो मेरी बहनों, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, खलील अल्लाह ने अपने अहले खाना यानी कि शीर खार से बेटे जो इतने सालों के बाद होते हैं, और अपनी अहलिया बीबी हाजरा को ले जाकर उस जगह छोड़ देते हैं, और मेरी बहनों अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करते हैं। जैसे कि सही बुखारी रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है कि जब उम्मे इस्माइल यानी कि बीबी हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे आने लगी, तो सवाल भी किया, जब आवाज लगाई आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम इब्राहिम कहते हुए, कि आप बताएं हमें क्यों ऐसे छोड़े जा रहे हैं। जब आपने तीसरी मर्तबा पूछा कि क्या ये अल्लाह ताला का हुक्म है, तो आपने फरमाया बेशक अल्लाह का हुक्म है। और मेरी बहनों, इस तरह बीबी हाजरा ने फरमाया, तब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है तो वो हमको हरगिज जाया न करे। सुभान अल्लाह, तवक्कल की क्या प्यारी मिसाल है देखिए। और फिर आप रुक वहीं पर आबाद हुई, यहाँ तक कि उस वक्त हालात ऐसे थे मेरी बहन, शहर मक्का के एक ऐसा रेगिस्तान, एक ऐसा चटियल मैदान जहां दूर दूर एक एक दरख्त होगा। हाँ, सफा मरवा के उस बालाई मकाम पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रिवायत करने वाले साहबा जो उस वक्त रिवायत करते, तो फरमाते यहीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उम्मे इस्माइल को और बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को यही छोड़ा था, जो सफा मरवा से थोड़ा सा करीब का जगह था, जहां पर एक घना दरख्त था, उसके नीचे बिठाया और आपको वहां पर वो खजूर और पानी रखकर आप लौट गए। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, जब उसके बाद देखिए बावजूद इसके वहां क्या था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, पथरीला मुकाम है, दूर दूर कहीं पानी नहीं है, और सोचिए जहां पानी नहीं था तो वहां परिंदे और जानवर भी नहीं रहते, ऐसी जगह पर ले जाकर अल्लाह की उस बंदी को छोड़ दिया गया। और मेरी बहनों, आपने
उस शहर की बुनियाद। हकीकत आप गौर करें कि आज हम खाने काबा की तामीर का जब कभी वाक़या पढ़ते हैं तो तारीख इब्राहिम अलैहिस्सलाम में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने बाद आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों खाने काबा की तामीर हुई। लेकिन मैं आप सबको इस बात का भी एहसास दिलाना चाहती हूँ, मेरी दीनी बहनों, आप देखिए, खाने काबा की बुनियाद तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डाली, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने शहर की बुनियाद जिस शख्सियत से डलवाई वो है उम्मे इस्माइल बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला, जो कि एक औरत थी, खीरखार बच्चे की माँ। देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह, मिसाल कितनी प्यारी, क्या प्यारा, यानी कि अल्लाह ताला के दीन के लिए कितना बेहतरीन आपने कदम उठाया और अल्लाह का हुक्म को आपने पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों, ये चीज है। एक मर्तबा गौर करके देखें, मैं जरूर ये कहूंगी कि बेशक अल्लाह ताला ने खलील अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मर्तबे बुलंद किए वो तो आपके मर्तबे है ही, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तुम्हारे लिए इब्राहिम और उनके साथियों की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, फरमाते हैं लक़द कान लकुम उस्वतुन हसना इब्राहिम मआहू, इब्राहिम और उनकी साथियों में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, फरमाया गया। तो साथी कौन थे? आपके अहले खाना, जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया। तो आपके अहलिया बीबी हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा वहां रह गए और उनके जरिए से जब उन्होंने वहां रुक गए, उसके बाद वहां पर काफिले जो वहां से गुजरते थे, मुल्क शाम से भी काफिले मक्के की तरफ से जाते, कभी इधर से जाते, कभी मदीने की तरफ से जाते। मक्का शहर से तो काफिले गुजरते थे, इधर से उधर आने जाने वाले काफिले, लेकिन कोई काफिला रुकता नहीं था। तो एक मर्तबा ऐसे ही तारीख इस्लाम पढ़िए, सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खाने काबा की आबादी, उस वक्त की तारीख को पढ़े मेरी बहनों, तो क्या है, जब काफिले जाने लगे तो ऐसा ही कबीला बनु जुर्हम जो तिजारती तौर पर अक्सर इधर से शहर मक्का से गुजरा करता था, तो उसने उस काफिले वालों ने देखा कि दो पहाड़ों के बीच में ऊपर जरा सा ऊंचाई की तरफ, यानी सफा मरवा की तरफ, ये लोग नीचे से जा रहे थे थोड़ा सा, तो देखते हैं कि वहां पर आबी परिंदे उड़ रहे हैं। आबी परिंदे वो तो समझे आप, पानी के परिंदे जो पानी की वजह से आते हैं, जब आबी परिंदे कहते हैं, तो हम देखते हैं ना, पानी के करीब रहने वाले परिंदे अलग होते हैं और बगैर पानी जंगलों में रहने वाले परिंदे अलग होते हैं। तो इसको आप क्योंकि पानी को कहा जाता है अरबी में, तो वहां पर पानी के पास रहने वाले परिंदों को देखा गया। तो काफिले वालों ने काफिले को रोका और अपने नौकरों चाकरों से कहा जरा जाकर देखो तो सही, ये लगता है वहां पर पानी है, क्योंकि अब तक तो कभी हमने ऐसे परिंदों को वहां नहीं देखा, ये तो पानी के परिंदे हैं। फिर यहाँ पानी नहीं तो परिंदे आए कहाँ से? मतलब वो लोगों ने वहां जब जाकर देखा मेरी बहनों, तो देखा वहां पानी भी है, वहां पर एक अल्लाह की नेक बंदी और एक मासूम सा शेरखार बच्चा भी है। वो आकर खुशी खुशखबरी सुनाते हैं। तो तब बनु जरहम ये काफिला वहां दौड़ा दौड़ा काफिले के लोग जाते हैं और देखते हैं बीबी हाजरा से मिलकर बहुत खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं बेइंतहा, और आपसे कहते हैं, आपसे इजाजत मांगते हैं कि ये पानी जिसको आपको इस्तेमाल करने की इजाजत हो तो वो कुछ रुके, आराम करे और जाए। तो यानी कि मक्का में कोई रुकता भी नहीं था। जब आपने फरमाया कि बेशक रुक तो सकते हो, लेकिन कोई इसको अपने लिए खास ना कर ले, लिहाजा पानी का इस्तेमाल तो सभी के लिए है। तो मेरी बहनों, तब वो लोग वहां रुके। अब इस तरह आते जाते काफिलों से एक दूसरे में तस्करे होने लगे, पानी की शुरुआत हुई, तो वहां पर लोग रुकने भी लगे। सुभान अल्लाह। तब आप सोचो इस वाक्य में मेरी बहनों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक घर की बुनियाद रखी, बीबी हाजरा ने एक शहर की बुनियाद रखी। ये है माशाअल्लाह औरत के अंदर जो सलाहियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है। इसीलिए मेरी बहनों, ये कहा गया, किसी शायर ने क्या खूब कहा, वजूद जन से है तस्वीर कायनात से। लेकिन आज खवातीन को शैतान ने दुनियादारी में मशगूल कर दिया है। हमारे हाथों इस्लाम की खराबी के 50 काम हमारे हाथों से अंजाम दिलवा रहा है। इसी वजह से आज माशरे में ऐसी परेशानियां हैं और हम घरों से बेपरवाह, तरबियत औलाद से बेपर्दा बेपरवाह, और ईमान इस्लाम से हमारे दिल खाली। अब आप बताइए, कैसे हमारी जिंदगियों में ये इबादतें एक रस्म होके रह गए, असर कुछ नहीं रहा। इसकी एक खुली मिसाल बताऊं मैं आपको, आज लोग हज करने के लिए बैतुल्लाह की तरफ चलते हैं, तो तमाम हाजियों के लिए तलबिया होता है। अभी हिंदुस्तान के हैं हम लोग तो देखिए हमारे लिए यलमलम से रहती मीकात की शुरुआत जो समंदर के अंदर से शुरू होती है, तो क्या किया जाता, जैसे हमारा प्लेन समंदर में उस जगह पर पहुंचता है, ऐलान होता है प्लेन में कि हाजियों के लिए मीकात के तक हम पहुंच चुके हैं, तब आप लोग नियत कर लें। तो तमाम हाजी वहीं पर अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जुन कहते हुए हज की नियत का एहतमाम करते हैं
اور तलबिया की शुरुआत कर देते, क्योंकि प्लेन में होते इसीलिए एहराम वगैरह एयरपोर्ट से या अपने घरों से बांधकर हम जाते, लेकिन नियत नहीं करते, इसलिए क्योंकि नियत करेंगे तो फिर हम पाबंदी में आ जाएंगे। तो मेरी अजीज दीन बहनों, इसीलिए जहाँ मीकात है और ये सुन्नत है, मीकात पे पहुंचकर ही नियत का एहतमाम करें। तो ये कहते करते हैं। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, देखिए आप, और जैसे नियत करते हैं तलबिया क्या पढ़ते हैं सभी, बताएं क्या पढ़ते हैं? तो सभी कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तलबिया के अल्फाज क्या होते हैं? ए लब्बैक, हाजिर है, अल्लाहुम्मा या अल्लाह, लब्बैक हम हाजिर है, ला शरीक लक लब्बैक, ला नहीं, शरीका तेरा कोई शरीक, का कुमा कुम का तू एक के लिए, वाहिद के लिए है सेवा। बताते हैं अल्लाह ताला आपका कोई शरीक नहीं, ला शरीक लक, आपका कोई शरीक नहीं, लक लब्बैक, ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। इन्नल हम्दा, तमाम हम्द, तारीफ, शुक्र आप ही के लिए है। वन निअमता, और तमाम नेमतें आप ही की है। अरबों खरबों अनगिनत ये नेमतें, इसके मालिक सिर्फ आप है, जिन्होंने इस नेमतों को दिया। अल नेमत लक वल मुल्क, और ये मुल्क आप ही का है। मिल्कियत कायनात पूरी आपकी मां मिल्कियत है, आप इसके मालिक है, रब्बुल आलमीन आप ही मालिक है। ए ला ला शरीक लका, नहीं आपका कोई शरीक। लेकिन साथ ही दंड पे इमाम जामिन रहता, आप देख लीजिए, ये खवातीन की इजाजत है। कई मर्दाने को तो पता भी नहीं होता ये चीजें क्या है, उनको खुद तब पता चलता जब इन्हों हज उमरे को जाते रहते, घर में डोरियों में बांध के 1.25 का नोट लाते, बहुत बोले तो 11.25 होगा आजकल, या 125 होगा। अब सोचने की बात है मेरी बहनों, माजल्ला मेरे अल्फाज को गिरा न ले, एक बार सोचे जब आज लाखों लोगों में हम अपने रिश्तेदारों को हज के लिए भेजते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, हिफाजत के तौर पे, दंड पे इमाम जामिना, हाजी साहब का हाथ नहीं दिखता, हजानी माँ के मोहना नहीं दिखता, वहां से यहाँ तक कभी लोग बोल लेते भी, मालूम आपको क्या बने समझ रहे हैं, क्या इमाम जामिना, क्या इमाम जामिना, ईमान की खराबी करने वाले इमाम जामिना। जिस ईमान, अल्लाह ने तुमको अपने हफ्ज अमान में ले लिया, जब तुम अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हो, तो ये शिरक है मेरी बहन, इस चीज का हरगिज इस्तेमाल मत कीजिए, इनकार कीजिए इसका, वरना आपका जो तलबिया है, कल उसके ताल्लुक से आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। मेरे अजीज भाई बहनों, ये कहना पड़ेगा कि आप जबान से जो कहते थे, क्या वो आपके अमल पे है? क्या आपके दिल को एहसास है आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं ला शरीक लका, गलों में तावीज़ा लटक रही, कहते हैं ला शरीक लका, पैरों में डोरियां, हाथों में डोरियां, चलिए आपने काटा नहीं तो कहां से ला शरीका वो लगा हुआ? आप तो शिरक में डूबे हुए हैं, इससे पाक हो जाइए, अपने आप को पाक कीजिए, अकीदतन कोई डोरी धागा ना हो। फिर सोचिए तो सही, जब आज इतने लोगों में हम भेजते हैं, तो ये नोटों को बांध के डाल रहे हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो तने तना छोड़ा था, क्या कोई ऐसा अमल किया मेरी बहन? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही तो फरमाते हैं, ऐ लोगों, सिर्फ उन यादगारों को ताजा मत करो, उस तारीख को पढ़ो, सीरत तैयबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पढ़ो, सीरत तैयबा बीबी हाजरा को पढ़ो। आप ऐसे वक्त में रेगिस्तान में छोड़ के आपको जा रहे हैं मेरी बहनों, शीरखार से बच्चे की माँ। और मेरी अजीज दीनी बहनों, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए, नमाजों को कायम करने के लिए, उस शहर मक्का को दोबारा आबाद करने के लिए, इतनी बड़े काम के लिए अल्लाह ने आपको चुना। और आप फरमाती है, इब्राहिम आप बेफिक्र जाइए, अल्लाह ताला हम आपको जाया न करे, वो अल्लाह जिसने हुक्म दिया वो हमारा निगहबान है। ये ईमान मेरी बहनों, अल्लाह ताला यही तो फरमाते हैं, इन अव्वल बैत वुज़िय्या लिन्नासि बिबक्कतम मुबारकम व हुदम व लिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, बेशक सबसे पहला घर जो इबादत के लिए बना है, अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह का घर जो बना है, वो है जो बक्का में है। बक्का, जो भी शहर मक्का ही का एक नाम है, जो शहर मक्का के 5 नाम, उनमें एक है बक्का। अल्लाह फरमाते हैं बिबक्कत मुबारक, बड़ा ही बाबरकत शहर, बड़ी ही बाबरकत इबादत, बड़ा ही बाबरकत मकाम, इतनी बरकतें कि अगर तुम सही में ईमान के साथ, इखलास नीयत के साथ, सच्ची तौहीद के साथ जाकर इबादत करोगे, तो ऐसे लौट कर आओगे जैसे अभी माँ की कोख से दुनिया में आए, बिल्कुल एक नौमौलूद की तरह।
हर तरह के गुनाहों की मगफिरत और पाकीज़गी के साथ। लेकिन वो लब्बैक जो कहते हो, जो ज़बान पर नहीं बल्कि दिल से निकले मेरी बहनों, दिल से कहे लब्बैक, और वो दिल से कहते हुए अपने जिस्म के आज़ा व जवारा उस तौहीद के ऊपर अलामत, उस तौहीद की गवाही दे के बेशक हम जो कहते हैं वो लब्बैक हक है। मेरी अजीजों, इसीलिए एहसास करें, इस सबसे बड़े गुनाह से बचें, और एहसास रखें, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह हम में क्या सलाहियत है, हम क्या कर सकती हैं। शैतान ने आज हमको दुनियाओं में मशगूल करके दुनियावी दुनियादारी, टीवी के सीरियल, शैतानियत, टी पार्टी, किटी पार्टी, फजूल के दुकानदारियां, जिसमें हमारे वक्त को, हमारे माल को सर्फ करा रहा है। यही चीज की वजह से कि हम में जो अल्लाह ने बेहतरीन सलाहियतें रखी है, कहीं अगर हम खाली रहेंगे तो वो इस्लाम के लिए लग जाए। इसीलिए तो मेरी बहनों, आज ये हाल है जिंदगी का। इसीलिए किसी शायर के ये अल्फाज क्या प्यारे हैं, देखिए कि इस्लाह माशरा तुम्हें मंजूर हो अगर, फरमाया शायर ने लिखा, इस्लाह माशरा तुम्हें मंजूर हो अगर, तो बच्चों से पहले माओ को तालीम कीजिए। मेरी अजीजों, इसीलिए हमको अपने घरों का एहसास करना है, और एहसास करें, देखें माशाअल्लाह कि किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप वहां रुकने के बाद जब पानी की प्यास से, भूख की तड़प से परेशान होते हैं, यहाँ तक के इस्माइल अलैहिस्सलाम की तो यानी कि रोते 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 तकलीफ शुरू होती है, आह बन जाती है, तब आप इस पानी के लिए परेशान से दौड़ते हैं मेरी बहनों। तो अल्लाह ताला ने वहां कैसे पानी की शुरुआत की, देखिए इसमें बहुत बड़े हिदायतें हैं, बड़ा सबक है हमारे लिए, बस उनके लिए जो बसारत वाली आंख रखते हैं, अपने अल्लाह की कुदरत की निशानियों को गौर करते हैं। लेकिन गौर करें मेरी बहनों, जरूर गौर करें, इसीलिए तो अल्लाह हमको बुला रहे हैं, वरना ये कोई पिकनिक नहीं है, ये कोई आम तिजारती सफर नहीं है। फायदे अल्लाह देंगे हमको, लेकिन सबसे पहला फायदा हमारी आखिरत है, सबसे पहला फायदा हमारे अपने आप को ईमान इस्लाम का पहुंचाइए। देखिए वहां कैसे सबक है, और देखिए जिन्होंने अपने अल्लाह के लिए अपना आराम छोड़ा, खाने पीने की तमाम चीजों को छोड़कर, पता नहीं था वो कब तक चलेगा, उसके बाद फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप चले जाते हैं और उस जगह पे रह जाते हैं, जब प्यास से परेशान होते हैं, तो मेरी बहनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस 7वीं चक्कर पर इस सुन्नत को पूरा करते हुए एक बार जरूर याद करना। आज हम इतने चिकने हो चुके हैं, पहाड़े वो संगे मरमर बिछा है आज तो, उसके ऊपर दौड़ते चलते वक्त भी तेज तेज हम थक के थोड़ा रुक जाते, कई लोग तो व्हीलचेयरों पे आ जाते हट्टे कट्टे भी, ऐसा हरगिज ना करे। तो ज़ईफ़ों के लिए छोड़ दो, कमज़ोरों के लिए छोड़ दो, आज है ताकत इस्तेमाल करो। इसीलिए जवानी में इबादत करो मेरी बहन, मेरी दीनी बहनों, तो आप गौर करना, जब आप अपने पैरों से चलोगे, अपनी ताकत पर दौड़ोगे, तो एक बार एहसास होगा कि आज इन पहाड़ों को जिसको छाट 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 के इतने कम और इतने नर्म कर दिए गए हैं, मरवा की तरफ जब इख्तिताम पे पहुंचे ना, मैं मेरी जाने वाली बहनों से जरूर ये कहूंगी कि एक बार थोड़ा ऊपर तक जाके मरवा पे वो पहाड़ को देख लीजिए, जो बकिया हिस्सा बाकी है। सफा की तरफ तो पूरा मिरर में है ना, ऊंचे ऊंचा हिस्सा पहाड़ का, उस तरफ अक्सर लोग देखते हैं क्योंकि शुरुआत के लिए वहां जाते हैं। सफा लेकिन ऊपर तक नहीं चढ़ा जा, मरवा लेकिन ऊपर तक नहीं चढ़ा जा, जरा ऊपर जाकर देखिए, वहां जो पहाड़ है ना, जैसे नोकीले जो पत्थर है, उसको भी बहुत चिकना कर दिया गया है। लेकिन जब उसके ऊपर हम पहुंचे, एक बार एहसास कर लो, उन नोकीले पत्थरों पे दौड़ा था बीबी हाजरा, उस पहाड़ पे दौड़े थे आप, पैर में न चप्पल है, दौड़ रही हैं, फिर आती हैं अपने बच्चों को देखती, क्या मामला था उनका, माँ कैसा दौड़ रही थी उनकी, कितना प्यारा। और आपका तवक्कल देखिए कि एक बार दौड़े, देख लिए पानी नहीं है, दूर दूर तक देख रही, क्योंकि ऊंचाई पे चढ़े तो दूर दूर तक का दिखाई देता है, देखे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई आता जाता काफिला मेरी बहनों। लेकिन फिर क्या किया आपने, फिर जो है पलट कर आए, फिर बच्चे को देखे, देख के फिर दूसरी तरफ गए। अल्लाह अकबर, क्या प्यारे अदाएं, क्या ईमान का सबक है मेरी बहनों। दूसरी पहाड़ी पे चढ़ते हैं, सफा मरवा पे, तो आप जाकर देखते हैं दूर दूर तक दिखाई देता है, कोई काफिले का आने का आसार नजर नहीं आ रहे। फिर दौड़ती हुई नीचे आती है, फिर आकर अपने बच्चे को देखती है, फिर दौड़ रही है। तब आप बताओ, एक बार तो आप तहकीक के लिए दौड़े, लेकिन जब देख रहे हैं दूर दूर तक कोई चीज नहीं है, फिर क्यों उसी पहाड़ों पे आप दौड़ रहे? ये देखिए मेरी बहनों, आपका वो जो ईमान है अल्लाह का, बेचैन है इसलिए कि बच्चे के रोने को देख नहीं सक रही, बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, माँ है ना, अपने आप को रख के सोचिए, हम औरतों के लिए तो कितना प्यारा सबक है इसमें, हम थोड़ी अपने बच्चों की तकलीफ पे तड़प जाते। आप सोचिए, वो भी तो माँ थी, उनके भी सीने में दिल था, वो का भी दिल धड़कता था,
اللہ ताला यही तो फरमाते हैं अनबिया इकराम के लिए कि वो भी तुम्हारे जैसे इंसान थे, खाना खाते थे, पानी भी पीते थे, वो बाजारों में चलते फिरते भी थे। वो नहीं, अनबिया इकराम वो निकाह करते थे, उनको बच्चे होते थे, वो भी औलाद से मोहब्बत करते थे। मेरी बहनों तो देखो बीबी हाजरा अपने बच्चे को देखती हैं और फिर बेख्तियार, ये क्या है, आपके ईमान की अलामत है। हुक्म अल्लाह का है यहाँ रहने का, बस यहीं पर आप चक्कर पे चक्कर काट रही है, बेकरार जैसे होता ना। अक्सर गौर करके देखिए, इस नाचीज के अल्फाज में जो ज्यादती हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ फरमा दे, लेकिन मैंने अपने तौर पे जो एहसास किया मैं बता रही हूँ मेरी बहनों, कि कैसे आप परेशान दौड़ रही है। क्योंकि कभी भी देखिए आप एहसास करके कि हम अगर कोई परेशानी रहे ना, हम एक जगह ठहर नहीं सकते। ये हमारी फितरत है, अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है। के बाद हम बेचैन बेचैन रहते, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। फोन भी कर दिया, शौहर आ रहे हैं भी बोलते, फिर जाते दरवाजे पे देख के आते रहते, फिर जाते इधर देखते, फिर जाते अंदर जाते, फिर आते बाहर आते, फिर वो करते। लफ्ज हमाको उस वक्त क्या होता, ठहरना भी मुश्किल होता। तो देखिए ये चीज बीबी हाजरा में देखिए कैसे चक्कर लगा रही है, दौड़ती आती है, फिर देखती है बच्चे को, फिर दौड़ती जाती है। सातवीं चक्कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जोश पे आई, जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे। और वहां पर मेरी बहनों, हुक्म अल्लाह से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब अपना पर मारा या एड़ी रगड़ी, जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम भी रो रहे थे, तो मेरी बहनों उस जगह से एक ऐसा पानी निकला जो प्यासों के लिए प्यास बुझाता है, भूखों के लिए भूख, जो बीमारों को शिफा दे देता है। जिस नीयत से पियो आपको मिल जाता है, जो दिलों की पाकीज़गी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बेहतरीन नीयत, जो अच्छी नीयत कर कर हम पिएंगे उसका फायदा, और वो शिफा भी है, वो दवा भी है, और वो ग़िज़ा भी है, वो पानी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नेमत अल्लाह ने दी। तो बस सबक लो मेरी बहनों इससे, कि जब कोई बंदा या बंदी अपने अल्लाह ताला के लिए अपने आयशो आराम को, अपने सुख चैन को छोड़ते हैं, अपने अल्लाह के लिए आगे बढ़ते हैं, उसके लिए सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते गए और मुसीबतों के वक्त कायम रहते हैं ईमान पर, तो अल्लाह उनको कैसा तोहफा देते हैं। आम लोग तो आम पानी पी रहे थे, अल्लाह ने बीबी हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए पूरी दुनिया को मुस्तफीद फरमा दिया उस नेमत का इब्तिदा करके। वजह वो बने, लेकिन आज पूरी दुनिया उससे मुस्तफीद हो रही है। मेरी अजीज दीनी बहनों, तो सोचिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये है ईमान वाली बंदी की ईमान की मिसाल, तवक्कुल अल्लाह की मिसाल। इसीलिए जब जाएं तो जाने से पहले, जब कभी किसी का हज का प्रोग्राम हो, मैं जरूर आपसे कहूंगी मेरी बहनों, वो फॉर्म दर्ज करने के बाद अपना नाम आ गया तो हम सब खुश खुश हो जाते, इतने खुश होते, खानदान में इत्तला देते। और खुशी ही की बात है कि कई तो इंतजार में खड़े हैं, अल्लाह ने अगर हमको बुला लिया, आने का रास्ता आसान फरमा दिया, तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, अल्लाह के शुक्रगुजार होना चाहिए और जाने की सही तैयारी करें। लेकिन आज हम क्या करते, खुशी में सबसे यानी कि दावतें लेना शुरू कर देते, दावतें देना शुरू कर देते। ऐसे वक्त में हमको फोन वगैरह आता भी कई जगह से कि हज कैंप फला जगह रखा गया है, हज के क्लासेस है, अटेंड नहीं करते, बोलते नहीं अम्मा, रिश्तेदारों ने दावत में नहीं गए तो नाराज हो जाते ना जी, दावत में जाना आप देखो जरूरी भी है ना, ये तो आप क्लासेस अटेंड करना जरूरी नहीं है आपका, जहां आपको हज क्या है बताया जाता था, हज के अरकान सिखाए जाते थे, में कैसा अकीदा आपका होना है, हज मबरूर कहते किसको है आपको पता चलता। मेरी हज से आपको सिर्फ हाजी साहब या हजानिमा का एक नाम ही लेना नहीं है, बल्कि हज से आपको अल्लाह की रजामंदी, अपने गुनाहों की मगफिरत, दिलों को हिदायत लेना है, अल्लाह ताला वो जो तमाम रखे उन फजाइल को पाना है आपको। तो उस हज को आप समझ कर जाइए। मैं तो उम्रे के लिए भी कहूँ मेरी बहन, अगर उम्रे को भी जाना है तो बस पैसे बंदिए, खुशी खुशी चले जा रहे हैं, वहां जाने के बाद कई सारे लोग बहुत परेशान होते, कई सारे ऐसे अरकान कर देते, ऐसे मतलब मामलात होते हैं जो सही नहीं होते मेरी बहनों, इसलिए वहां जाके परेशान होते। अब आने के बाद किसी बहन सहेली से जिक्र किया, उन्होंने बोलते अल्लाह ऐसे कहीं को करे जी माँ, आप ऐसा तो सही नहीं था ना, आपको तो ऐसा नहीं बल्कि ऐसा करना था। तब बोलते हाय मेरी कमबख्ती, अब क्या करूं, आ गई ना जी, फिर अल्लाह ताला फिर भेजते होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह बार बार भेजे मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गनी है, हम गरीब हैं, अल्लाह गनी है इंशाल्लाह ताला। अच्छी आरजू रखें, अल्लाह जरूर हमारे नियतों को पूरा फरमाएंगे। अल्लाह ताला जो है हमको जरूर बार बार बुलाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको भी हज मकबूल और मबरूर नसीब फरमाए इंशाल्लाह, बार बार उम्रों की सादतें नसीब फरमाए, लेकिन सही समझ के साथ, सुन्नत की पैरवी के साथ, तौहीद के इत्तिबा के साथ। ये है हमारे लिए मुफीद चीज।
اور دیکھیے کس طرح الحمدللہ، اسی لیے حج میں ہے ہی مشقت، مشقت سے ہونے والی عبادت ہی حج ہے. آپ کو اتنا بڑا اجر مل رہا، مشقت نہ ہوگی. لیکن پھر یہ امام ضامن کیسے، اور پھر کہنے والا کلمہ کیا ہے. اسی لیے میری عزیز دینی بہنوں، آئیے حج کی حقیقت کو جانیے، حج کے مسائل کو سنیے، عمرے کے مسائل کو سنیے. اور اگر صحیح میں ہم دل سے عبادت کریں گے، کرنا چاہ رہے ہیں، تو صحیح طریقے پہ کیجیے. کیونکہ قبولیت عبادات کے لیے جو دو شرط ہے اسلام میں، وہ ایک پہلی شرط ہے کہ ہمارا اخلاص سے نیت، کہ وہ عمل جو ہم کریں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. دوسرا اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر ہو. تو سنت کیسے ملے گی؟ جب ہم محفل علماء میں جائیں گے، ہم دین سیکھیں گے، بیٹھیں گے، تو یہ تمام اہل علم، یہ علماء، یہ جو ہمارے لیے کلاسز رکھتے ہیں ہر ملک ہر شہر میں، واللہ عالم بقیہ علاقوں کا، مکہ وغیرہ کا تو میں بتا نہیں سکوں گی، لیکن کئی جگہ دیگر جو ممالک ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں، تو ان کے لیے حج کے کلاسز رکھے جاتے ہیں. تو میری عزیز دینی بہنوں اور میرے دینی بھائیوں، آپ سب بھی پوری طرح معلومات حج کیجیے، اور کیا صحیح کیا غلط. حج مبرور آپ کو ملے گا کیسے؟ مبرور کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کے ساتھ، یعنی کہ قبول ہونے والا حج. تو کیسے؟ جیسے کہ اس کا مبرور، جس ورڈ کو دیکھیے، اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی شروعات جو ہے نا بر سے ہے، لیا گئی ہے، اس سے بر سے بتایا جا رہا ہے علم کی طرف سے. بر کے معنی نیکی کے ہوتے ہیں. مبرور ایسا عمل جو نیکی پر ہو، جس میں نہ ہم کسی کو تکلیف دیں، نہ ہم کسی کا دل دکھائیں، نہ ہم کوئی غلطی کریں، نہ کوئی سنت کی خلاف ورزی کریں، ہاں نا، اسے تمام چیزوں سے بچے رہے اور صحیح عبادت کریں. تو اس کا بدلہ آپ کو اتنا اعلیٰ اور بہترین ہے کہ آپ تمام گناہوں کی مغفرت پاؤ گے. تو الحمدللہ میری عزیز دینی بہنوں، تاریخ حج کو دیکھیے. تو جب اس کے بعد وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ پھر مرحلہ قربانی چلا، یعنی کہ قربانی کا مرحلہ بھی گزرا. جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک، کیونکہ جب پانی آ گیا، لوگ قافلے آنے جانے لگے، لوگوں کی آبادیاں شروع ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ وہاں پر کچھ رکنے بھی لگے لوگ. تو رکتے رکتے جس پہلے قبیلے نے وہاں آبادی کی شروعات کی، وہ بھی ہمیں تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ بنو جرہم، وہی قبیلہ آباد ہوا. جسی قبیلے کے لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا. صحیح بخاری کی حدیث جو ہم پڑھتے ہیں، جس میں کہ اس خاتون کے اندر جب ناشکرا پن دیکھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یعنی کہ دہلیز کو بدلنے کے لیے کہا صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام کو. تو آپ نے ان بیوی کو طلاق دیا، پھر دوبارہ بنو جرہم سے ہی دوسرا نکاح کیا لڑکی سے. تو الحمدللہ ان سے آپ کی اولادیں، اور جس سے وہاں سے عربوں کی آبادی ہے ماشاءاللہ. میری عزیز دینی بہنوں، جنہی میں سے اولادوں کی اولادیں، اولادوں کی اولادوں سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم بنو اسماعیل. تب آپ دیکھیں، جبکہ ایک تو وقت گزرا قربانی کا، الحمدللہ قربانی کا ایک مرحلہ، جبکہ آپ یعنی کہ بچپن سے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت مرحلہ قربانی گزرا. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پچھلے سال قربانی ہی کے مسائل سنے تھے، تو امید ہے اگر آج بھی آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو وہ عنوان آپ کو مل جائے گا، قربانی کا معاملہ کیسا رہا. تو لہٰذا وہ سب گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اور میری بہنوں، جیسے کہ ہم سنتے ہیں، تعلیم میں پڑھتے بھی ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں الحمدللہ ایسے بھی بہترین معجزے گزرے، جن میں سے ایک معجزہ جس کو آج ہم کھلے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک کیا دو معجزے. ایک مقام ابراہیم، جس پر ابراہیم علیہ السلام ٹہر ٹہر کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے، اور اس پتھر کے پر آپ کے دونوں پیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں. اور میری بہنوں، دوسرا حجر اسود، تو حج اللہ تعالیٰ کی طرف جنت سے بھیجا گیا پتھر ہے، الحمدللہ جس کو نصب کیا گیا. اس طرح کا تعمیر خانہ کعبہ مکمل ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بھی خوب دعائیں کی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعائیں کی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کہ رب میرے، یہاں میں ہم نے جو بھی عبادت کی ہے، ان عبادتوں کو قبول فرمائیے. رب العالمین ہماری جو بھی غلطیاں کمی پیشی ہوئی ہے، اس میں معاف فرما دے. تو میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مراحل کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جس بات کا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ سورہ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں
वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज, आपने फरमाया और लोगों में हज की मुनादी कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए। लोग इब्राहिम ऐलान कर दीजिए, इब्राहिम लोगों में ऐलान कीजिए। खलील अल्लाह को हुक्म मिला। मेरी बहनों, उस वक्त तो ना ऐसी सहूलतें थी, आज जैसे ऐलान के लिए हम देखते ना कई सारी चीजें इस्तेमाल होती है, और उस वक्त ऐसी आबादी भी नहीं थी कि आप ऐलान करते तो कहाँ तक के लोग बात पहुंचती। लेकिन हदीस में आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम आप ऐलान कर दें, जिन 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 को हज को बुलाना है, अल्लाह ताला वो खा वो अभी माँ की कोख में भी है वो बच्चे, या वो अरवाह आलम में भी है, तो उन तक भी आपकी सदा को रब्बुल आलमीन पहुंचा देंगे। तो मेरी बहनों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इस हुक्म को निदा की सूरत में आवाज दी। जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज्जी, और लोगों में हज का ऐलान कर दीजिए, तो मेरी दीनी बहनों, आपने जो निदा लगाई, इसीलिए तो आज आप देखिए, गौर कर कीजिए, हम लोग जब हज को जाने का एहतमाम करते हैं तो हज अरकान हज में, अभी मैंने उस पर खुलासा भी आपको बताया था, तौहीद और शिर्क में फर्क के साथ। तो बताएं, जो हम तलबिया पढ़ते हैं, फिर एक बार उसके माने को गौर कीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक का माना क्या होता है? हाजिर है अल्लाह। अल्लाहुम्मा, या अल्लाह हम हाजिर है। अच्छा, किसने बुलाया आपको? तो ये वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो निदा, जो आपने उस वक्त अल्लाह के हुक्म को पूरा फरमाया और लोगों में ऐलान हज फरमाया। मेरी बहनों, आज भी और कयामत तक आने वाले तमाम हुज्जाज अकराम, तमाम उम्रों को जाने वाले आपके उसी निदा का जवाब देते कहेंगे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। या अल्लाह, आपने अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से ऐलान हज फरमा दिया। फिर उसी को बाद में अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए फर्जियत हज और उम्रे का हुक्म दिया। तो मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सुन्नत के तरीके पर हज करने का तरीका सिखा दिया गया। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, हम उस निदा का जवाब देते हुए उस बारगाह इलाही में हाजिर होते हैं। तो मेरी अजीजों, इसीलिए ईमान भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा पैदा कीजिए, इस्लाम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब कभी हम अपने बंदे इब्राहिम को फरमाते कि इब्राहिम मेरे मुस्लिम बन जाओ, तो इब्राहिम कहते कि या अल्लाह, मैं आपका मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह। मुस्लिम बन जाओ, मुसलमान हूँ से मुराद क्या है? मुसलमान किसको कहते हैं? इस्लाम को अपनाने वाला, इस्लाम पर अमल करने वाला, कबूल करने वाला अहकामात इलाही, फर्मा बरदारी अख्तियार करने वाला, कुल मिलाकर जानिए पूरी तरह अपने आप को अपने अल्लाह के आगे सरेंडर कर देने वाला, अहकामात इलाही के आगे। ये है मेरी बहनों हकीकत में, इस्लाम भी इसी को कहते हैं, और हमारा भी यही माना है। लेकिन आज का मुसलमान अपने माने ही को बदल चुका है। मुसलमान के माने अपने आप में हमने ये बनाया, कहा तो मुसलमान, अल्लाह ने फरमाया इस किताब में हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, इससे पहले भी तुम्हारा नाम मुसलमान था। अल्लाह के फरमाबरदार था, अल्लाह के आगे अपने आप को झुकाकर सिलेंडर कर देने वाले था। लेकिन आपने आज क्या, हमने मेरी बहनों आज ये बना लिया मुसलमान का माना, हमने सोच रख लिया मनमानी करने वाला। दिल बोला नमाज पढ़ो, दिल बोला छोड़ दो, दिल बोला ज़कात दो, दिल बोला छोड़ दो, दिल बोला रोजा रखो, दिल बोला छोड़ दो, दिल बोला हम करेंगे इबादतें, भाई हमारी मर्जी, हमारी जिंदगी हमारी मर्जी नहीं। इसीलिए तो मेरी बहनों, हम इबादतें करें, ये बड़ी एक जामे इबादत है, याद रखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बनिस्बत बुनियादी इबादतों में नमाज, रोजा, ज़कात, ईमान के बाद हज बैतुल्लाह का जो एहतमाम है, आप देखिए, तौहीद के बाद सबसे पहला जो हुक्म इबादत का आया वो नमाज का रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि इब्तदाई नमाज के वक्त में मक्का में सुबह और शाम दो दो रकात पढ़ी जाती, फिर यानी कि मेराज की रात से 5 वक्त नमाज की फर्जियत का हुक्म आ गया। और मेरी बहनों, और हिजरत के 1.5 साल यानी कि दूसरे साल शाबान 2 हिजरी में रोजे फर्ज हुए, उसी साल जक़ात फर्ज हुई। लेकिन हज बैतुल्लाह के ताल्लुक से हमें तारीख इस्लाम में मिलता है कि जमहूर उलमा का इत्तेफाक है इस बात पर, इस कौल पर, तमाम मुत्तफिक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा इख्तिलाफ है कि किस सन हिजरी में हज बैतुल्लाह फर्ज हुआ, कोई 7 भी कोई 6 भी। लेकिन जमहूर यानी कि ज्यादातर, बहुत ज्यादा उलमा इकराम का इत्तेफाक जिस बात पर है, सीरत की किताबों में जो हमें मिलता है, वो है अल्लाह ताला ने फतेह मक्का के बाद 9 हिजरी में बैतुल्लाह के हज को फर्ज फरमाया। क्योंकि अब हर तरह की पलीदगी से बैतुल्लाह को पाक कर दिया गया,
اور اعلان کر دیا گیا اس کے بعد کہ کوئی ننگا بندہ آدمی، نہ کوئی تالیاں بجانے والا، سیٹیاں پیٹنے والا، نہ کوئی مشرک خانے کعبہ کو حج کرنے کے لیے آئے۔ اعلان ہوا اور پھر حج کے صحیح طریقے دکھا دیے گئے، سنت کے حساب سے حج کیسے کرنا، حاجی کا لباس کیا ہوگا، ابتدا سے انتہا تک حاجی کو کیسا عمل کرنا ہے، مرد ہو یا عورت، کیا شرائط ہے، کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہے، کیا سنتیں ہیں، کیا نوافل ہے، وہ تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی درج کرتے ہیں، اس کو ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے زاد راہ اور سواری ہو لیکن اس نے حج نہ کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس حدیث کو کہیں یعنی کہ ضعیف بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن باوجود اس کے بہت زیادہ اہل علم نے، علماء اکرام نے اس کو اپنی سیرتوں میں درج کیا ہے، لیکن تفسیر میں درج کیا ہے، لیکن اس کی ضعفت کو ظاہر کرتے ہوئے یہ ضعیف ہے لکھا بھی جا رہا۔ تو میری بہنوں یہاں دیکھیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرما دیا قرآن مجید کی اس آیت میں جو ہم نے پڑھا سورہ آل عمران کی، فرمایا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر کوئی انکار کر دے حج کا، فرضیت ہونے کے بعد بھی تیاری نہیں کرے، ہیلے حوالے بہانے بنائے، تو ان سے کر دو اللہ ان سے کیا تمام عالم سے بے نیاز۔ اللہ نے کسی چیز کا مکلف ہم سب کو، ہم میں سے کسی کو نہیں بنایا میری بہن۔ دنیا چلتی رہے گی، ہم آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، کسی کے نہیں ہونے سے کوئی چیز رک نہیں جاتی۔ ماں کسی کے مر جانے سے کسی کی شادی نہیں رکتی، کسی کی شادی ہو جانے سے کسی کی موت نہیں رکتی، زندہ کا دنیا کا نظام چلتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ ایسی کئی سارے اچھے برے حالات کو دنیا میں اللہ ہم کو اسی لیے دکھاتے ہیں کہ مثال نہ دو کہ میں یہ نہیں کرے تو نہیں ہوتا، اس لیے عبادت کا ٹائم ہے لیکن میں عبادت نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی 50 لوگ ایسی مثالیں بناتے ہیں۔ اگر ہم حج بیت اللہ کی اس حقیقت کو، اللہ جو فرماتے ہیں وہ ہدی للعالمین، اس میں ہدایت ہے عالم کے لیے، اور سے دیکھتے تو میری بہنوں آج ہم میں 50% وہ مسلمان جو کہ حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، اللہ الفاظ کی زیادتی ہو جائے تو معاف فرما دے مجھ کو میری بہنوں اللہ، لیکن آپ دیکھیے وہاں جا کر ایک نماز نہیں چھوڑتے، آنے کے بعد حجان امام کو نماز کی فکر ہی نہیں رہتی۔ حاجی صاحب بے پرواہ ہے نمازوں سے، حالانکہ عمرہ اور حج کر کے آئے ہوئے ہیں، کہتے بولتے محفلوں میں بیٹھے تو کبھی آپ کو پتا نہیں میں اتنے بار عمرے خرچ کر چکا ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، لیکن کیا ہے اب کوئی سنت دکھتی ہے نہ عبادتوں کی پابندی۔ جبکہ میری بہنوں ہم خواتین کے لیے میں ایک بڑی مثال دوں کہ بی بی ہاجرہ ایک شیرخوار سے بچے کو لے کر جاتی ہے وہاں پر اور اس جگہ کو آباد کرتی ہے، اور اس وقت کے ان سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھیے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا آپ کو ملے گی، جس میں صحیح بخاری کی حدیث اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام اتنی دور آ گئے، بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جب پہلی مرتبہ اس شہر میں چھوڑا، مکہ میں چھوڑا، ریگستان میں، تو لوٹ کر آتے ہیں، چلتے 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 جب دل کو یہ احساس ہوا کہ اب اتنی دور آ گئے کہ اونچے اونچے پہاڑ پیچھے چھوٹ گئے، اب پلٹ کے بھی تو اہل خانہ کا چہرہ نہ دکھے گا، تب آپ پلٹتے ہیں میری بہنوں مغرب کی طرف اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میں نہیں کہتی ہوں تب بھی پڑھتی ہوں، میرے دل ایک دم کانپ جاتا ہے آپ کے اس وقت کی محبت، آپ کی اس تڑپ کا احساس کر کے۔ کبھی کہ احساس کرو میری بہنوں، ہم دنیاوی چیزوں کو بولتے، آپ فیل کر کے دیکھو، احساس کرو کیا حال ہوگا جب آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک ایسے بیٹے کو جو 70-80 سال کی عمر میں ملتا ہے، اور اس بچے کی شیرخوار سے بچے کی ماں کو دنیا میں ہم کتنے جتن کر کے رکھتے، 50 تو وہ ہے 2 سال کے بچے رکھ کے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور خانہ کعبہ کی اس طرف پلٹ کر مغرب کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کیا، رب العالمین، اے میرے رب، ربنا انی اسکنتو، اے میرے رب میں اپنے ازواج اور اولاد کے ایک حصے کو اس بے آباد وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، الفاظ مبارک ہیں قرآن میں، فرمایا اے میرے رب اس لیے کہ لوگ یہاں نماز کو قائم کریں۔ بتائیں میری بہن کل ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ آج جو ہیلے حوالے بہانے بنانے والے عبادتیں رسموں کی طرح کرتے ہیں، عبادتوں کی ہدایتوں کا ہم کو احساس نہیں ہے، اسی لیے عبادتوں کی روح بھی ختم ہو چکی ہے عبادتوں سے۔ بس ایک یعنی کہ دیکھیے جیسے کہ لباس کا پہننا ہے خوبصورت، ایسے ہو گئے ہماری عبادتیں کہ بس کر لے رہے ہیں کر لے رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہے ہماری زندگی میں۔
اللہ کے میری بہنوں دیکھیے آپ ریگستان میں چھوڑے گئے، اور اس آیت سے غور کریں کہ سب سے پہلے نماز سے بنیاد پڑی جس شہر کی، آج حج کر کے بھی بے نمازی ہے، جانے والے حج کی تیاری کرنے والے بھی بے نمازی، نمازوں کی فکر ہی نہیں ہے، لیکن عمرہ کو حج کو جاتے کرتے وہاں جا کے پڑھ لے کے آ جائیں گے حج نمازیں، پھر آنے کے بعد پھر جیسے کہ ویسے نہیں۔ میری بہنوں دیکھیے تو کتنے پیارے پیارے سبق ہے میری عزیز دینی بہنوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کا انکار کر دے، اگر اس کی تیاری نہ کرے، تو اس سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ تو میری عزیز دیدی ناظرین اکرام، الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت مکمل ہوا۔ ہم اپنے عنوان کو تکمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علیہ